convocation or Dikshant Samaro, as we call it in our Indian tradition, is the culmination of years of hard work, passion and commitment. It's a moment of joy and fulfillment for which the students, their parents, the teachers eagerly await. Today indeed is a big day for the university and especially for all the students who would be getting their degrees, medals and prizes in today's convocation ceremony. Our chief guest in this function is the Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh Ji. Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor of Delhi University, will preside over the function. Ladies and gentlemen, this year is indeed very special as the University of Delhi celebrates its centenary year. 100 years of glorious service to the society. Established way back in the year 1922, the University of Delhi has grown from strength to strength and is a leading university of the country today. Students from every nook and corner of the country come here to study. Even students from many foreign countries find the University of Delhi the right place to seek knowledge and skill. And to give you a brief overview of today's function, our chief guest, Honorable Defence Minister of India, would be here shortly along with the academic procession. The procession would be led by the Registrar of the University and would comprise of deans, heads of departments, principals of different colleges, Director South Campus, Treasurer and the Vice Chancellor along with the chief guest. As the procession, the academic procession enters the hall, I would request all of you to rise as a mark of honor for the academic procession. The function would formally start with the national anthem, followed by the lamp lighting ceremony and an invocation to the goddess of knowledge, Goddess Saraswati. After that, the Dean of Colleges would formally seek the permission of the Vice Chancellor to declare the convocation open. This would be followed by the welcome address of the Honorable Vice Chancellor. And after that, the Vice Chancellor would be admitting the students graduating this year, and also he would read out the commandments to the graduates and charge them with the duty to the society. We would be having the release of digital degrees as well after that, and then the address of the chief guest. The first part of today's convocation ceremony would come to an end with the national anthem, and the chief guest would depart with the return of the academic procession. The dignitaries on the dais will accompany him to see him off, and after that, after a gap of 20 minutes, we would resume with the distribution of prizes and medals. After the distribution of medals, we will break for a quick lunch and reassemble after half an hour for the distribution of degrees to the PhD students. Director of South Campus, Professor Shri Treasurer of the University, Professor Kavita Sharma, Dean Examination, Professor Dean Deans of various faculties of the University, heads of various departments and principals of colleges.
I request all of you to please rise for the national anthem. I would now request our Chief Guest, Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh Ji, to please come forward for the lamp lighting ceremony and Saraswati Vandana. I also request all the dignitaries on the dais to please join in. On that auspicious note, let's begin today's proceedings. May I now request Dean of Colleges,
Professor Balram Pani to seek the permission of the Honorable Vice Chancellor to declare the convocation open. Professor Pani, please. Very good morning, Honorable Vice Chancellor sir. Do I have your permission to declare the convocation open? May I request the Honorable Vice Chancellor sir to deliver the Honorable Vice Chancellor sir, with the permission of the Honorable Vice Chancellor, I declare the convocation open. I would now request Honorable Vice Chancellor, University of Delhi, Professor Yogesh Singh, to deliver the welcome address. Namaskar, good morning. Very good morning to all of you. I welcome you all on the behalf of University of Delhi in 98th Annual Convocation Ceremony of University of Delhi. Honorable Defence Minister, Government of India, Shri Rajnath Singh Ji, Dean of Colleges, Professor Balram Pani, Director South Campus, Professor Shri Prakash Singh, Registrar Dr. Vikas Gupta, Dean Examination Professor D.S. Rawat, Honorable Members of University Court, Executive Council, Academic Council, Finance Committee, Deans of University of Delhi, Head of various departments, Principals of different colleges, distinguished faculty members, officers and officials of University of Delhi, dear alumni, invited guests, media friends, proud parents, and my dear talented and gifted students, good morning again. Good morning to all of you. As a Vice Chancellor of this great institution, I welcome you all on this very auspicious and important day, 98th Convocation of University of Delhi. The graduation ceremony is the most significant occasion in the university calendar. It's a profound and defining moment. It's a profound and defining moment for graduates, and university takes pride. University takes pride in your achievements. आज हमारे लिए और भी ज्यादा गर्व, सम्मान और सुख की बात है, प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं भारत के रक्षा मंत्री। उनका आज आना मैं समझता हूं कि इस कन्वोकेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये आसान उनका आ जाना बिल्कुल भी नहीं था। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या है और उसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है, उसके बीच में से आपने समय निकाला। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कितने सहज, सरल और सौम्य है रक्षा मंत्री। हमको लगता है कि हम सबको व्यवहार में कुछ ऐसा ही होना चाहिए। बड़ा मुश्किल है ऐसा होना, पर ऐसा होना चाहिए। ये हम सबकी इंस्पिरेशन के, प्रेरणा देने के काम करते हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो मुझे बहुत लगता है कि यहाँ पर ठीक जाता है कि किसी को न हो सका उसके कद का अंदाजा, किसी को न हो सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सिर झुका के चलता था। ऐसे रक्षा मंत्री देश के। और एक और बहुत अच्छी बात है कि हम में से बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से हैं जो सुन रहे हैं, इतने विद्यार्थी हैं।
माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी अपने न जाने कितने पड़ावों को पार कर पहुंचे होंगे। हम विद्यार्थियों को, आप सब तो ब्राइट स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं और बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, हम सबको उनके जीवन से सीखना चाहिए। 26 वर्ष की उम्र में 1977 में एमएलए बने, 26 वर्ष की उम्र में एमएलए बने और 1991 में, तब 1977 की बात है, 1991 में शिक्षा मंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो अपनी छाप छोड़ी। आज भी जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री कौन हुआ, तो बहुत सारे लोग लेते हैं कि राजनाथ जी सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हुए, जहां गए जैसे गए अपनी छाप छोड़ी। एक और बात जो मैं सोच रहा था कि 1999 में जब यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आज जो देश में इतने बड़े बड़े हाईवे नजर आते हैं, लगता है कि अमेरिका और यूरोप के टक्कर के हाईवे हैं, उसकी फाउंडेशन में माननीय शिक्षा मंत्री की सोच, मेहनत, समझ छुपी हुई है। ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी के लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है और इतना तेजी से हो रहा है, उसके पीछे जो उसके फाउंडर हैं और फाउंडेशन में हैं, जब वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब उन्होंने नींव डाली थी। आज हम सब उसके फ्रूट्स खा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ये। 2000 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, 2003 में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, 2014 में यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स बने और 19 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ये तो उनकी पड़ाव दर पड़ाव उपलब्धियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी उपलब्धि है कि मैं जब भी उनसे मिला या जो भी उनसे मिला, लगा कि किसी बड़े मन के व्यक्ति से मिला। क्योंकि बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। कुंवर बेचन साहब की कविता कई बार कोट करता हूँ कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना, मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाइयों से वाकिफ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। तो ये उसके उदाहरण है कि बड़े होकर कैसे बड़ा रहना है, और ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में किया है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं उसके साक्षी होंगे, मैं भी एक साक्षी हूँ कि बड़े होकर बड़ा रहना सीखने की अगर कोई आवश्यकता है तो माननीय रक्षा मंत्री जी से हमको सीखना चाहिए कि कैसे एक सहज सौम्य व्यक्तित्व रहा जा सकता है और देश सुरक्षित है ऐसे सबल हाथों में। हम में से किसी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कितनी भी खराब हो जाए, हम सबको भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम है जो भारत की सरकार कर रही है, सुरक्षित हैं हम सब और बहुत ही बिना किसी डरे हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं और ये देश आगे बढ़ रहा है। दूसरी लास्ट बात और कहूंगा कि उनको बहुत, जब भी विद्यार्थियों से इंटरेक्शन की बात आती है, कोई मौका मिलता है कि किसी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में जाने का, बच्चों से बात करने का, यूथ के साथ जुड़ने का, वो तो उस मौके को प्रायोरिटी देते हैं। आज ये इसका ही उदाहरण है। हम सब जानते हैं टेलीविजन पे चल रहा है कि सीसीएस की बैठक होनी है और भी बहुत सारी के बावजूद यहाँ आए। हम तो कल घबरा रहे थे सर कि आप आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। आप आए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। University of Delhi, you all know, will be completing 100 years on 1st May 2022. After 2 months, we will be completing 100 years. This university was established 1st May 1922. With only 3 colleges, St. Stephen's, Ramjas and Hindu College. 3 colleges, only 750 students. आज से 100 साल पहले only 750 students, 3 colleges, और जब ये नहीं थी तो उससे पहले ये लाहौर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे और अभी मुझे बताया था कि स्टीफेंस 1 साल तक यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से भी एफिलिएटेड रहा। तब देश में सिर्फ 3 ही विश्वविद्यालय हुआ करते थे। बाद में लाहौर आई तो लाहौर से बने 1922 में हम आए। तो यहाँ से जो 100 साल की जर्नी है, लाइक नाउ वी हैव 90 कॉलेजेस, 16 फैकल्टीज, 86 academic departments and 6.7 lakh students. Such a glorious achievement. I would like to thank all of you. I would like to congratulate all of you for this accomplishments of University of Delhi. When it comes to the rankings, University is doing very well, no doubt, no debate on that. NIRF ranking 2021, 12th rank amongst the Indian universities. Center for World University Ranking, we are placed 6th in the national ranking. Times Higher Education Asia ranking, we are in the bracket of 2012 to 250.
Now Government of India wants that, and Indian university should come in first 200 league of best universities of the world. And we are working in that direction, that Delhi University has capability and capacity to come in the first 200 best universities of the world. We are working in that direction, sir. When it comes to US world ranking, we are in the bracket of 500, and US India ranking 6th best university in India, US Asia ranking 77th best university in Asia. And Government of India has declared this university as Institution of Eminence. Congratulations to all of you. These are some of the statistics, but when it comes to the research and innovations, university is doing very well in that direction also. And Delhi University H index is 224, highest in the country. 224 when it comes to research, which is highest in the country. And among central universities, we have highest number of international collaborated papers, highest number of citations, highest in terms of total research output, and in 2021, Clarivate Research Excellence Award in Central University category was given to University of Delhi. Congratulations to all of you. First time in the history of University of Delhi, 6 professors have been elected as fellow of science academies. This is first time. 6 persons, fellows of science academies. 4 fellows of science academies are Professor Vinod Kumar from Zoology, Professor Indrajit from Environment Science, Professor Ramakant from Chemistry, Professor A.K. Verma from Chemistry. 2 professors elected as fellows of Indian Academy of Science, Professor D.S. Rawat, Chemistry, and Professor Swati Saha, Biochemistry. We are proud of you. And now in the eve of 100th year, on this convocation, we are awarding degrees to 1,73,541 students. Medals 161, prizes 34, and PhDs 802. 802 is highest in the history of University of Delhi, and probably highest in India from any Indian university. Number of PhDs given in a year 802. I would like to thank Professor D.S. Rawat, Dean Examinations, who worked very hard. He reformed the total processes of the examination system, and we could achieve this. I would like to thank Professor D.S. Rawat and his team for this achievement. And Defense Minister Sir, our university is different than other universities. When we say we have 90 colleges, 85 colleges are, or around 80 colleges are part of the university. They are constituent colleges of the university. They are not affiliated colleges of the university. They are part and parcel of the university. And with so many affiliates, so many, university maintained and such colleges, it's a real achievement for any university to have such academic standards. Now we want to start few new programs. Like in Faculty of Technology, we used to have very good Faculty of Technology here. We used to have 2 colleges, Delhi College of Engineering and Netaji Subhash Institute of Technology. But now they have become universities. They are not with us, they are independent universities. And now we have decided to start. We have Faculty of Technology, we have departments, but we don't have students there. So we have decided to start BTech program in Computer Science, Electronics Engineering and Electrical Engineering from the coming session. 5-year integrated program, BA LLB and BBA LLB program also we want to start very soon. Our campus of open learning is also working very hard to start few programs like BBA, some certificate programs in the emerging areas of science, arts and technology. They are working hard and we will come up with new programs in the campus of open learning. When it comes to the national education policy implementation, now university has taken lead in the country. Our framework is ready, implemented, and from the academic session 2023, we would be able to implement most of the provisions of the national education policy from the coming academic session. My dear graduating students, you are our pride. My dear graduating students, you are our pride. And please maintain this throughout your life. Please maintain this throughout your life, dear students.
we are fortunate to have such bright students in the University of Delhi achieve greater heights, but be players, not the spectators. India don't need spectators now. You have to play. You have to make your place. Honestly, diligently, and in the interest of the country. We are passing, as we all know, we are passing through unprecedented times. But don't worry. Remember the statement of Martin Luther King. He said, if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving. You have to keep moving. This is a message, so keep moving forward. Keep your chin up. This unprecedented time has, most of the part has already passed. जो बचा है वो भी चला जाएगा. किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि रात भर का है मेहमान अंधेरा. रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा. रात जितनी भी संगीन होगी होगा उतना ही उजला सवेरा. So don't worry, be positive in life. And take initiatives in life. We have to learn lessons. If we have to learn lessons from our defense minister, take initiative. जहाँ जाओ अपनी छाप छोड़ो. जहाँ जाओ कुछ अच्छा करो. Take initiatives and take responsibilities also. याद रखना, जो responsibility शर्कर होते हैं उसको मिलता नहीं कुछ. Take initiatives and take also responsibilities. अपने आप सजेस्ट करो. कोई बोलता है मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं इस काम को. जब कहा ही नहीं कि अप्रोच पे आ गए तो समझो आधा तो काम अपना खराब पहले हो गया. Try to find ways and means in your life. You are intelligent, you are right, you have capability, you have capacity, you can do wonders. Keep your mindset in that direction. क्योंकि याद रखना, एक बहुत अच्छी पोएम की लाइन है कि खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, खुद मझधार में होकर भी और जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारियां उसे ही देता है जो निभाने के काबिल होता है. वैसा बनो. And don't, my dear student, never ever frustrate in your life. Never ever. Whenever I see someone negative, critical, frustrated, मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों करना है? Never. God is very kind to all of us. हम तो बहुत थोड़े से एक ग्रुप से आते हैं. आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, आप ब्राइट थे तो एडमिशन हुआ, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिली तो आपको तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए. क्योंकि ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है. शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब देती है. Don't be part of that group. And lastly, I want a promise, that is, I want a promise from all of you. My dear students, those who are here, and those who are with us through the social media, Facebook and YouTube, I want a promise that in our lifetime, we will not do anything which is against the interest of our country. हम ऐसा कोई काम अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे जो इस देश के खिलाफ हो. जो लोग इसका प्रॉमिस दे सकते हैं, जरा हाथ खड़े करो. बहुत बढ़िया. इसको मानना भी कि हम पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी ऐसा चाहती है, देश भी ऐसा चाहता है. ऐसे ही इसको सिटीजन चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही लीडर्स चाहिए जो ऐसा कोई काम न करें इस देश के खिलाफ हो. आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं 98 कन्वोकेशन के लिए. धन्यवाद. Thank you so much, Vice Chancellor sir, for that warm welcome and putting things in perspective. May I now request Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, to felicitate our Chief Guest, Honorable Raksha Mantri Ji, Shri Rajnath Singh Ji.
I would now request Registrar, University of Delhi, Dr. Vikas Gupta, to formally seek the permission of the Honorable Vice Chancellor to admit the graduating students to their respective degrees. Dr. Vikas Gupta, please. Sir, I pray that the students who have been examined in the academic year 2020-21 and found qualified for the award of various degrees may be admitted to the respective degrees for those present and in absentia. I would request all the students to please rise. Only the students. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of this university, I admit the students who have been examined in the academic year 2021 and found qualified for the award of respective degrees for those present and in absentia. All the students may please be seated now. Ladies and gentlemen, this year the university is giving away digital degrees as well, a reform which we started last year. This year, 1,73,542 digital degrees are being given away. May I now request our Chief Guest, Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh Ji, to release the digital degrees by pressing the button on the tablet. I would request the dignitaries to please take their seats. May I now request Registrar, University of Delhi, Dr. Vikas Gupta, to formally request the Vice Chancellor to read out the commandments to the graduating students and charge them with their duty to the society. I would request again all the students to please rise. Only the students. Thank you. Sir, this is for the first time that we have released these degrees, and they have been secured by blockchain security feature for the first time in the University of Delhi. All degrees which have been released by the Honorable Minister, they are blockchain security degrees, sir. Thank you. Sir, may I request the Honorable Vice Chancellor to read out the commandments. Students, kindly rise. As is our tradition, I now prescribe the following commandments. Follow your conscience and lead a life of rectitude with courage and honesty. This is the precept, this is the advice, this is the commandment. हमारी परंपरा के अनुसार मैं निम्नलिखित विधि वाक्यों का निर्धारण करता हूँ। अपने विवेक का अनुकरण करते हुए साहस और ईमानदारी के साथ सत्यपरायणता से युक्त जीवन के लिए अग्रसर हों। यही निर्देश है, यही सुझाव है और यही विधि वाक्य है। Thank you so much, Vice Chancellor, sir. I'd also request you to formally request our Chief Guest, Honorable Defence Minister of India, for the convocation address. मैं मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और दीक्षांत उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय रक्षा मंत्री जी। I would request all the students to be seated now. सैल्यूटेशन होगा, उसी में होगा, फाइल में, उसमें है, उसमें
Salutation. नहीं है salutation. Okay. आप अपना salutation दे दीजिए, उसी से बोल देते। Okay. Vice Chancellor of Delhi University, Professor Yogesh Singh ji, Dean of College, Professor Balram Pani, Director South Campus, Professor Yashvi Singh, Registrar Dr. Vikas Gupta, Dean Examination, Professor D.F. Rawat. Professor Rawat, I would like to congratulate for your excellent job. Honorable members of University Court, Executive Council, Academic Council, Finance Committee, Deans, Heads of Departments, Principals of Colleges, distinguished faculty members, officers and officials of University of Delhi, dear alumni, or uninvited guests, media friends, और my dear students, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 98th दीक्षांत समारोह में, और जिस समय हम यहाँ आ रहे थे तो प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने यह बतलाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 100 ईयर पूरी करने जा रही है विद 2 मंथ। इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हुई है। जैसा आपके वाइस चांसलर ने बताया, मैं टीचर भी रहा हूँ, मैं रिसर्चर भी रहा हूँ और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा हूँ। स्वाभाविक है जहाँ कहीं भी यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जाता है, बहुत ही सहज तरीके से मैं अपनी कंसेंट दे देता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एक बार लॉ कॉलेज में और एक बार कुछ एक्सक्लूसिव कार्यक्रम था। यहाँ 2 बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इसके पहले भी ये 3rd टाइम है जब मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में कह सकता हूँ कि पिछले 100 वर्षों के अंदर सारी दुनिया में दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक अपनी पहचान बनाई है। और जब मैं कॉलेजेस का नाम देखता हूँ, वेंकटेश्वर कॉलेज, खालसा कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, और साथ ही साथ वैदिक कालीन जो विदुषियां थी, जो नारी शक्ति के प्रतीक मानी जाती थी, गार्गी और मैत्रेयी, इनके नाम पर भी कॉलेज, और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर भी कॉलेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर भी कॉलेज। मैंने एक से एक शख्सियत, चाहे वो प्राचीन भारत की हो, चाहे मध्ययुगीन भारत की हो, चाहे आधुनिक भारत की हैं, उनके नाम पर यदि कॉलेजेस किसी विश्वविद्यालय में देखने को मिलेंगे तो केवल और केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में ही देखने को मिलेंगे। और कॉलेज ऑफ एजुकेशन है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। और मैं देख रहा था कि माने जाने मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ये आर्यभट्ट जी का नाम आपने सुना होगा, उनके नाम पर भी कॉलेज है। इसलिए कहा प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत की जो प्रमुख हस्तियां थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के भी नाम पर कॉलेज है। केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा। इन 100 सालों में से कई हस्तियां दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलकर, मैं वही चर्चा कर रहा था यहाँ आने के पहले आपके वाइस चांसलर से, जहां मैं जाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई न कोई मुझे प्राइज मिल जाता है। यहाँ तक कि चेन्नई में भी इंटेलेक्चुअल एक कार्यक्रम को एड्रेस करने के लिए मैं गया था, वहां पर भी मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के सज्जन मिले थे। उनका मैं नाम बोलूंगा, शायद ही जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग न मिल जाए। वे जहां कहीं भी रहें, आज मौजूद हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है। उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड
यह स्वाभाविक रूप से आता होगा कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज जिन बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई के चलते आज के दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जा रहा है, मैं उनके सभी परिवार के सदस्यों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और जिनको आज डिग्री प्राप्त हो रही है उनको भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। साथियों, इस दीक्षांत शब्द का यहाँ तक अर्थ है, हम सभी जानते हैं, पहली बार इसका प्रयोग ही कहीं पर हुआ था। पैतृक उपनिषद में इसका प्रयोग होता है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान से होता है, दीक्षा का अर्थ संस्कारों से होता है, और मेरे जैसा व्यक्ति यह मानता है कि जीवन में ज्ञान से भी ज्यादा अहमियत यदि किसी चीज की होती है तो संस्कारों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। राम और रावण दोनों से आप अच्छी तरह परिचित हैं। राम से ज्यादा धनवान भी थे, उनके पास सोने की लंका थी। रावण उस समय के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान भी माने जाते थे, यानी राम से ज्ञानी भी माने जाते थे, धनवान भी थे, ज्ञानवान भी थे राम के कंपैरिजन में, और मृत्यु पर भी का वरदान प्राप्त हुआ था, यानी सबसे ताकतवर बलवान उस समय वही माने जाते थे। तो रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्ञानवान भी थे, बलवान भी थे, सब कुछ था। पूजा धनवान भी थे, पूजा रावण की नहीं होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की होती है, जिन्होंने आजीवन मर्यादाओं का पालन किया। इसलिए मनुष्य के जीवन में संस्कारों की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। आज के बाद आप इस विश्वविद्यालय परिषद से निकलकर एक ऐसी दुनिया में आप कदम रखेंगे जहां सारा विश्व ही आपका विश्वविद्यालय होगा। अब आपके जीवन में भी कई बदलाव आएंगे, यह स्वाभाविक है। माता पिता कहेंगे, बेटा मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब तुम्हारी बारी है। इसलिए जो सीखा है वहीं से शुरुआत होती है। जैसे आजकल हर थ्योरी में एक अप्लाइड साइंस होती है, उसी तरह मैं मानता हूं कि जो पढ़ाई लिखाई है उसका भी एक अप्लाइड एस्पेक्ट होता है। अब आपको खुद को इस दुनिया में अपने स्किल सेट्स के साथ अप्लाइड मोड में काम करना है। साथियों, मेरा यह मानना है कि बिना मजबूत नींव के कोई इमारत बुलंद नहीं होती है, बिना गहरी जड़ के कोई पेड़ बड़ा नहीं होता है। उसी तरह बिना अपनी संस्कृति, परंपराओं और स्वर्णिम अतीत को समझे, उसका सम्मान किए बिना कोई भी व्यक्ति, समाज अथवा देश किसी भी सूरत में महान नहीं बन सकता है। जो समाज अपनी जड़ों से कट जाता है उसकी हालत पूरी तरह से कटी पतंग की तरह होती है। भारत के गौरवशाली अतीत की तरफ से नजर उठाकर आप देखें, सहज रूप से भारत को ही नहीं, अब तो दुनिया को भी यह स्वीकार करना पड़ता है। भारत कभी विश्व गुरु था। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धारा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज फैमिली, यह मैसेज दुनिया के किसी एक देश की धरती से सारी दुनिया को गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत देश की धरती से गया है। यह मन का बड़प्पन दुनिया के किसी देश में देखने को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा तो केवल और केवल भारत में देखने को मिलेगा। आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और इस सदी में भी भारत को सफलताओं के नए अध्याय लिखने होंगे। इसके लिए हमें जीवन के हर क्षेत्र में स्वाभाविक है कि हमें नई ऊंचाइयां हासिल करनी होंगी। साथियों, एक समय था जब भारत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 था। आज के बच्चों से यदि पूछा जाए तो वो कहेंगे कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी वेस्टर्न कंट्रीज नंबर 1 रही होंगी। भारत कभी नंबर 1 नहीं हो सकता, लेकिन भारत नंबर 1 था। मगर सदियों की गुलामी के कारण बहुत सारे लोग भारत के उस गौरवशाली अतीत से
परिचित नहीं है, इसे मैं एक विडंबना मानता हूँ। मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, मगर स्वभाव के कारण मैं कुछ ही बातें यहाँ पर रखना चाहूंगा। आप में सभी लोग अपनी जिंदगी में जीरो या शून्य इस्तेमाल से अच्छी तरह परिचित हैं। जीरो का कंसेप्ट, शून्य का कंसेप्ट, ये कहाँ से आया? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जीरो का भी कंसेप्ट यदि कहीं से आया तो भारत से ही आया। कुछ लोग इस पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा इसके बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। समय होता तो मैं यह बतलाता कि जीरो ये भारत के ही ऋषियों और मनीषियों की इजाद है, यहाँ के लोगों की इजाद है, यहाँ के लोगों का ही दिया हुआ कंसेप्ट है। लेकिन यही तक अपनी बात को समाप्त करना हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका लिया हुआ है? श्रीधराचार्य। और ये केवल भारत के लोग मानते हैं ऐसा नहीं है, अब दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं। पहले जब हम लोगों ने कहा था कोई जल्दी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सभी स्वीकार कर लिए। पाइथागोरस थ्योरम अब आप सब भी जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये तो पाइथागोरस से 300 इयर्स बिफोर, 300 वर्ष पहले महर्षि वरायन ने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। और ये संस्कृत में श्लोक मिलेगा, संस्कृत में श्लोक मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। इस तथ्य को आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रो वाइस चांसलर थे डॉक्टर दिनेश सिंह, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा था, क्योंकि बहुत पहले कहा था, मुझे याद है, उन्होंने भी स्वीकारा था। और हाल ही में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक द क्रेस्ट ऑफ द पीकॉक, नॉन-यूरोपियन रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स बाय जॉर्ज जी जोसेफ ने सिद्ध किया है कि गणित के बहुत सारे सिद्धांत, मैथमेटिक्स के बहुत सारे थियरम्स, सिद्धांत या कैलकुलस न्यूटन के करीब 350 साल पहले भारत के केरल में यह लिखित रूप में उपलब्ध थे। किसी यहाँ भारत के किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित द क्रेस्ट ऑफ द पीकॉक, इस बुक को उठाकर आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा। एक प्रसिद्ध रूसी हिस्टोरियन के हिसाब से भारत प्लास्टिक सर्जरी में जीसस क्राइस्ट के जन्म के होने से पहले से ही भारत देश में महारत हासिल कर ली थी। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने एक सही तरीके से चलने वाला अस्पताल, सचल अस्पताल, वो भी स्थापित किया था। यह भारत देश मित्रों आर्यभट्ट, ब्राह्मण, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कणाद से लेकर सवाई जय सिंह तक वैज्ञानिकों की लंबी परंपरा का यह साक्षी रहा है। प्रसिद्ध जर्मन एस्ट्रोनॉमर कोपरनिकस के लगभग 1000 इयर्स बिफोर आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने के बारे में, मैंने बहुत सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। लेकिन यह बात किसी ने कही थी 1000 इयर्स बिफोर, कोपरनिकस के 1000 इयर्स बिफोर हमारे आर्यभट्ट ने इस बात को कही थी। और यह भी कहा था ये अपनी एक्सिस, ये अपनी धुरी पर घूमती है। इसी तरह आयक न्यूटन से 1000 वर्ष पूर्व ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की पुष्टि कर दी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी संस्कृत में आपको श्लोक मिलेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता, संस्कृत को श्लोक मिलेगा। यह अलग बात है कि इन कारणों से इन सब सारी चीजों का श्रेय जो भारत के वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए था, वो भारत के वैज्ञानिकों को नहीं मिला, बल्कि पश्चिम के वैज्ञानिकों को मिला। मैं केवल भारत की जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, हमारे भारतीयों की, मैं केवल उसी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब विषयों में भी हमारा देश पॉइनियर रहा है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाणक्य का है, अर्थशास्त्र है, जो आज राज व्यवस्था पर लिखी गई सबसे पुरानी और ऑथेंटिक
ये बुक मानी जाती है। साथियों, आज जब हम सब न्यू इंडिया के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझें और अपनी सांस्कृतिक विरासत को हम सभी पहचानें। हमारे इतिहास और संस्कृति में, इतिहास और संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर बोथ में वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है जिस पर हम नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मगर हमें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। कोई मुसीबत आ जाए तो उसे किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। आप सबने बहुत ही माने जाने मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन का नाम सुना होगा, जिन्होंने इन्फिनिटी की खोज की थी, अनंत, इन्फिनिटी। वे ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने महज 32 इयर्स की एज में, आपको आश्चर्य होगा, मैथमेटिक्स के 4000 से अधिक थ्योरम पर रिसर्च की थी। 4000 से अधिक थ्योरम्स पर उन्होंने रिसर्च की थी, जिन्हें समझने में दुनिया भर के मैथमेटिशियंस को एक लंबा समय लग गया, कई वर्ष गुजर गए। लेकिन मैं अपनी युवा दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं कि इतना ब्रिलियंट माइंड भी असफलताओं से, अनसक्सेस से अछूता नहीं रह पाया था। वो 12th क्लास में श्रीनिवासन रामानुजन 12th क्लास में 2 बार फेल हो गए थे, पर आज उसी स्कूल में जिसमें वो पढ़ते थे, उसी स्कूल का नाम उसी श्रीनिवासन रामानुजन के नाम से है। यदि सक्सेस न मिले तो हमको घबराना नहीं चाहिए। नो सक्सेस इज फाइनल एंड नो फेलियर इज फैटल। यह बात अपने दिमाग में बराबर हमारे बच्चों को रखनी चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। कोई सफलता या अंतिम नहीं होती है और कोई भी सफलता फैटल नहीं होती है, घातक नहीं होती है। हमें से ज्यादातर लोग जब सक्सेस नहीं हो पाते हैं, निराश होते हैं और मन में हार मानकर वो बैठ जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में सक्सेस हासिल किया है, जिन्हें बहुत सारी मुसीबतों का जीवन में सामना करना पड़ा है, मगर उन्हें अपने ऊपर भरोसा था। सब यही सिखाते हैं कि दृढ़ता और धैर्य सफल व्यक्ति के जीवन की यह सबसे बड़ी भूमिका होती है। मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, धैर्य और दृढ़ता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी जिंदगी की होनी चाहिए। और हमारी सारी कमजोरियां हमारे दिमाग में ही होती हैं। इस संदर्भ में मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक शहर में घूम रहा था। उसने देखा किसी ने एक एलिफेंट, एक हाथी को रस्सी से, साधारण सी रस्सी से बांध रखा है। तो उस हाथी का, उस एलिफेंट का जो ट्रेनर था, ट्रेनर से उसने पूछा, हाथी है, इतनी कमजोर रस्सी से बांध रखा है, किसी चेन से इसको बांधना चाहिए था, और यदि इसको तोड़ देगा तो क्यों नहीं तोड़ रहा है? तो उसने कहा कि ये जब हाथी छोटा था, जब बच्चा था, तो मैं इसको इसी साधारण सी रस्सी से बांधा करता था और आज भी उसी साधारण रस्सी से बांधता हूं। तो हाथी के माइंडसेट बन चुका है कि मैं उस समय जब मैं बांधा गया था तब रस्सी को तोड़ नहीं पाया था, अब मैं क्या तोड़ पाऊंगा, इधर उधर नहीं करता है, वो उसी से बना रहता है। उसने मान लिया था कि रस्सी तोड़ पाना ही हमारे लिए असंभव है। आज जब इस रस्सी का वो तोड़ने का ताकत रखता है, फिर भी साहस नहीं जुटा पाता है और उसके लिए कोशिश भी नहीं करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके अंदर साहस भी होना चाहिए, कोशिश भी होना चाहिए। किसी भी अनसक्सेस, किसी भी फेलियर पर आप विजय हासिल कर सकते हैं। और कई बार उसी हाथी की तरह हम असफल जब हो जाते हैं तो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। मैं सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी के जीवन से, इस कविता से मैंने भी अपनी जिंदगी में सीखा है। कई बार चैलेंज हमारे जीवन में भी आए हैं। 18 महीने मुझे जीवन में 24 साल 24 इयर्स की एज में मुझे जेल में रहने का अवसर मिला है। 18 मंथ में सेंट्रल जेल नहीं दे रहा हूं। उस समय कैरियर की चिंता होती थी, क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती।
यह बात हमारे बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए। और मित्रों, आने वाले समय में जब नए चैलेंजेस आपके समक्ष होंगे तो आपका आत्मविश्वास और जो ज्ञान आप सबने इस विश्वविद्यालय से अर्जित किया है वही आपका दोस्त होगा, वही आपकी ताकत होगी और आगे बढ़ने में वही आपके लिए सहायक भी होगा। मित्रों, आज मानव सभ्यता अपने जिस पड़ाव पर खड़ी है, खासकर हम इसके पिछले 200-300 सालों की प्रोग्रेस को देखें तो हमें विश्वविद्यालयों का बहुत ही एक मेजर कंट्रीब्यूशन, अहम योगदान ये देखने को मिलेगा। इन वर्षों में चाहे आर्ट हो, कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, राजनीति से लेकर इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी और गवर्नेंस के क्षेत्र में मानवता को जितने भी ज्ञान प्राप्त हुए हैं, जितने भी दर्शन और सिद्धांत मिले हैं, वह सभी प्राय विश्वविद्यालयों से ही संबद्ध रहे हैं। एक हालिया उदाहरण जो मेरे दिमाग में आया, नोट किया मैंने, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज सिलिकॉन वैली से मैं समझता हूं कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो न परिचित। दुनिया भर में कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सेंटर बना हुआ है। कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सिलिकॉन वैली सेंटर बना हुआ है। इसके पीछे का इतिहास आप देखेंगे तो उसके रूट्स आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही दिखाई देंगे। इसी तरह बोस्टन आज दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड और बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप का सेंटर है। इसके पीछे भी यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटीज का ही एक बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी में नए नए रिसर्च और इन्वेंशन के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका रही है, मैं समझता हूं उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में हमारे विश्वविद्यालयों की भूमिका नहीं रही है, केवल विदेशी विश्वविद्यालयों की भूमिका रही है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और आईटी सेक्टर में हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों ने बहुत नए और बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एडोब, IBM जैसी कंपनियां भारतीय शिक्षण संस्थाओं में पढ़कर निकलने वाले भारतीयों के हाथ में है। इस समय वो इसका संचालन कर रहे हैं। आज हमें यह सोचने की जरूरत है जो भारतीय टैलेंट दुनिया भर की टॉप कंपनियों की बागडोर संभाल सकता है, वह भारत में टॉप कंपनीज को एस्टैब्लिश क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं यहाँ पर स्थापित कर सकते इस प्रकार की टॉप की कंपनी? साथियों, पहले देश में डिफेंस मिनिस्ट्री में हूँ, स्टार्टअप्स पर मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया है, स्टार्टअप्स पर, और उसके लिए फंडिंग भी मैंने बढ़ाई है। कल ही मैंने घोषणा की जो अब तक 1.5 करोड़ होती थी, मैं उसको 10 करोड़ तक बढ़ाने की मैंने घोषणा की। साथियों, पहले देश में कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम था ही नहीं, मगर पिछले 6-7 सालों में तस्वीर बदली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2014 में केवल 500 स्टार्टअप्स काम करते थे, और आज आपको जानकर खुशी होगी मोर देन 60,000 स्टार्टअप्स इस समय काम कर रहे हैं। यह है भारत। पिछले साल 2021 में भारत में 44 नए यूनिकॉर्न निकलकर सामने आए और भारत के यूनिकॉर्न की संख्या 83 हो गई। आपको खुशी होगी कि 2022 के पहले 50 डेज में, जो 2022 के जो 50-60 दिन जो गुजरे हैं, इसमें 10 नए यूनिकॉर्न आकर जुड़ गए। मित्रों, किसी भी देश का भविष्य आप जैसे यूथ पर, आप जैसे नौजवानों के ऊपर निर्भर करता है। और मैं मानता हूं कि देश की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो आप जैसा नौजवान है, आप जैसा यूथ है। युवा बदलाव का सबसे बड़ा कैटलिस्ट होता है और सबसे बड़ा सोर्स भी होता है। इन्वेंशन, इनोवेशन और आइडियाज के दम पर परिवार किसी भी चुनौती का सामना करने की कुवत रखता है। इसलिए आप सब आगे बढ़ें, नई टेक्नोलॉजी खोजें, नए इन्वेंशन भी करें, नई कंपनीज और रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट खड़े करें, एक लक्ष्य बनाकर
निर्भीक होकर आप आगे बढ़ें, यह मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। साथियों, जैसे मैंने कहा कि मैं भी एक फिजिक्स का छात्र रहा हूं, वैसे आप में से जिन्होंने भी साइंस पढ़ी होगी वह सर सीवी रमन के नाम से अवश्य परिचित होंगे, क्योंकि उन्हें रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। जानते हैं इंडियन थे तो सीवी रमन साहब कौन थे? He was the first non-European and non-white. He was the first non-European and non-white to get the Nobel Prize for the research in fundamental science. ये सब हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के स्रोत हैं। जगदीश बसु, पौधों में भी जीवन होता है, इसको स्थापित करने का काम और इसका वैज्ञानिक श्रेय, वैज्ञानिक साइंटिफिक क्रेडिट किसी को जाती है, जगदीश बसु को जाती है। और बहुत सारे लोग इसको मानते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन वहां उस समय की परिस्थितियों के कारण भारत गुलाम था, इसलिए पेटेंट उसका केवल नहीं करा पाए थे, इसलिए इसकी क्रेडिट नहीं उनको मिल पाई। पश्चिमी देशों ने क्रेडिट नहीं दी वायरलेस कम्युनिकेशन के मामले में। कंट्रीब्यूशन किसी का है? जगदीश बसु का है। अब यह है कि पौधों में भी जीवन होता है, ये बात समझ में कैसे आई? माता पिता कभी कभी बातचीत के दौरान कहानी सुनाते हुए कोई बात कह देते हैं तो लोग उससे भी कुछ निकाल देते हैं। वैज्ञानिक जो होता है, जिसका दिमाग बराबर एक्टिव होता है, वैसे ही जगदीश चंद्र बसु को भी उनकी माताजी ने कहा था रात को वृक्ष को छेड़ना नहीं चाहिए, रात को वृक्ष को पानी नहीं देना चाहिए। यही बात जगदीश चंद्र बसु के दिमाग में बैठी थी, और जब आगे बढ़ते चले गए इसी पर रिसर्च शुरू किया, और बाद में उन्होंने स्थापित कर दिया कि नहीं, जो हमारे वृक्ष होते हैं इनके अंदर भी जीव होता है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान की जो सबसे बड़ी खोज हुई है, जिसे अब तक के 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा गया है, वह है यूरोप के स्वर्ण लैब में गॉड पार्टिकल्स की खोज, जिसका वैज्ञानिक नाम है हिग्स बोसॉन। आप जानते हैं दो वैज्ञानिक इंग्लैंड के पीटर हिग्स थे और हमारे वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस। पीटर हिग्स का हिग्स और हमारे सत्येंद्रनाथ बोस के नाम का बोस, बोस से बोसॉन, तो इसका नाम ही इस गॉड पार्टिकल का हिग्स बोसॉन रख दिया गया। अर्थात 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज पर भारत की टैलेंट की सिग्नेचर है, भारत की टैलेंट की सिग्नेचर है। सबसे बड़ी इन्वेंशन 21st सेंचुरी की है। क्या इस पर हमारे अंदर सेंस ऑफ प्राइड पैदा होनी चाहिए? होती है, कभी कोई जानकारी न होने के कारण ये चीजें नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछली शताब्दी में यूरोप और गोरों के बाहर फिजिक्स का प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने से लेकर वर्तमान सेंचुरी में भी फिजिक्स और साइंस की सबसे बड़ी खोज तक भारत की मेधा और प्रतिभा का अमिट प्रभाव उस पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। चूंकि फिजिक्स मेरा विषय रहा है, इसलिए मुझे ध्यान आया कि इसमें ही वह उदाहरण है जो किसी भी भारतीय युवा को विज्ञान की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, एक दूसरे पहलू की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। When we use the word God, particle, it has two words, God and particle. Particles के बारे में बहुत ज्ञान अर्जित भारत ने भी किया है, दुनिया के दूसरे देशों ने कर लिया है, परंतु गॉड अर्थात आध्यात्मिकता के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो ज्ञान भारत के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। गॉड का ज्ञान नहीं है, गॉड है क्या, स्पिरिचुअलिज्म है क्या, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और मैं कहता हूं भारत को ही है। मैं एक उदाहरण यहां पे देना चाहता हूं। आप सभी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब का तो निश्चित रूप से प्रयोग करते ही हैं। इस कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अपनी भारत की यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले थे। उन्होंने कहा एप्पल
एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स उनसे मिले थे। स्टीव जॉब्स ने उन्हें बताया था कि मैं एक बार बहुत संकट में था, मुसीबत में था, मैं हताश था, निराश था। तो मुझे ये बताया गया कि यदि जीवन में शांति चाहते हो, नई ऊर्जा चाहते हो, तुम जाओ हिंदुस्तान में नैनीताल में एक नीम करौली बाबा का कैंची धाम मंदिर है, वहां तुम जाओगे तो तुम्हें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। या एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को बताया, और मार्क जुकरबर्ग ने इसकी चर्चा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से की थी। और मार्क जुकरबर्ग ने यह कहा, मैं भी अपनी जिंदगी में एक बार बहुत ही निराश हुआ, बहुत ही हताश हो गया, तो मैं वही नीम करौली बाबा के कैंची धाम आश्रम गया था। मुझे जीवन में जो शांति मिली है और जो एक संबल मिला है, उसी के बल पर मैंने फिर से अपने कदम आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। यह उन लोगों की बात है, हमारी बात नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पार्टिकल का समाधान तो दुनिया में सबके पास है, लेकिन गॉड का समाधान स्पिरिचुअलिज्म के आधार पर जीवन की समस्याओं का समाधान केवल और केवल भारत के पास है। कभी कभी हमारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म की जीवन में आवश्यकता क्या है। सो कॉल्ड मैं प्रोग्रेसिव कह रहा हूं, माफ करिएगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। इसका उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं। आप सभी हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद पास आउट होकर निकलेंगे और जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप जाना चाहेंगे। हमारे बच्चों की ये भी ख्वाहिश रहती है कि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाएं, विदेशों में जाएं और अच्छे अच्छे पद हमको हासिल हों, और मौका मिलने पर आप काम क्या करेंगे या आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है और आपके मन पर निर्भर करता है। बुद्धि तो आपको केवल यह बताएगी कि आपको काम कैसे करेंगे, कितना अच्छा और कितनी सफाई से करेंगे, कौन सा काम करेंगे, यह तो आपका मन बतलाएगा, या आपके मन की प्रवृत्ति बतलाएगी। मन के बारे में तो मैं समझता हूं कि किसी को भ्रम होना नहीं चाहिए। मन है क्या? हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, टूटे मन से कोई छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। मन में चूंकि यहाँ पर साइंस की कम से कम हाई स्कूल तक तो निश्चित रूप से लोगों ने पढ़ी होगी, यहाँ पर मौजूद है। मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं इसको बताना चाहता हूं। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज अ सर्किल। थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए कि आपका मन एक सर्किल है। ये बताने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म को जीवन में क्यों लोग अपनाते हैं? जीवन में सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, परमानंद पाने के लिए हमारे ईश्वर मनीषियों ने कहा है। तो जब छोटे मन से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, छोटे मन से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, छोटे मन से परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा मान लो थोड़ी देर के लिए योर मन इज अ सर्किल, आपका मन एक सर्किल है, वृत्त है। तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस जितना बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद वो बढ़ता चला जाएगा। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of sukh. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of paramanand. आप छोटे मन वालों को देखिए, चेहरे पर जो ग्लैमर होना चाहिए नहीं रहेगा, उड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। मेरे बच्चों, सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में बड़े मन से काम करना। बड़े मन से जो काम करेगा वो जीवन में मर्यादाओं को किसी भी सूरत में तोड़ नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, अब बड़े मन का होना आवश्यक है। हमारे बड़े मन के लोग ऋषि और महर्षि थे जिन्होंने कहा होल इज आवर फैमिली। छोटे मन के लोगों ने, छोटे मन के लोग नहीं कह सकते, बड़े मन के लोग हमारे भारत में थे।
और आपके जीवन मूल्य आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। आपकी जो लाइफ वैल्यूज होती हैं वही आपके कैरेक्टर को बनाती हैं। और इस समय मुझे घटना याद आती है। स्वामी विवेकानंद सामान्यतः धर्म संसद में भाग लेने के लिए दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे। तो एक देश में वो गए, वहां किसी ने कहा कि पीले भाले आपके वक्त दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना ड्रेस, धर्म संसद का जो ड्रेस कोड है उसका पालन करते तो कुछ जेंटलमैन की तरफ आप दिखाई देते। जब ये टिप्पणी की जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या कहा था? इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। कैरेक्टर की जीवन में क्या अहमियत है मित्रों, ये मैं समझता हूं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अंत में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारा सपना है कि भारत फिर से जगत गुरु के पद पर आसीन हो। यह काल्पनिक नहीं है, हाइपोथेटिकल नहीं है। हम लोगों की जिंदगी का, हम लोगों की जिंदगी अभी अध्ययन है। हम भारत को शक्तिमान बनाना चाहते हैं, धनवान बनाना चाहते हैं, और भारत को हम ज्ञानवान भी बनाना चाहते हैं, और हर भारतीय को संस्कारवान भी बनाना चाहते हैं। धन, ज्ञान और शक्ति मनुष्य के जीवन की सब कुछ नहीं हो सकती जब तक संस्कार न हो। और मैं कहना चाहूंगा हमारी शक्ति दुनिया को डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगत कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हमारी शक्ति है। और दुनिया का पहला देश भारत है जिसने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह है हमारा चरित्र। मैं इन शब्दों के साथ एक अटल जी की प्रसिद्ध कविता है। अब आप कहेंगे अटल जी कई बार नाम लिया है। बहन भाइयों, राजनीतिक जीवन में मैंने अटल जी को अपने आदर्श के रूप में लिया है। बहुत नजदीक रहा हूं, बहुत नजदीक रहा हूं, इसलिए मैं दोहराता हूं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर वरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जितने हमारे छात्र हैं जिन्हें डिग्री प्राप्त हुई है, मैं उनको अपने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से मैं कामना करता हूं, और उनके परिवार जनों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Thank you so much, sir, for those thought-provoking words of wisdom. Thank you once again. Ladies and gentlemen, kindly rise for the national anthem. Ladies and gentlemen, with that we come to the end of our chief guest would now depart with the return of the academic procession. अगेन उर्दू की लिस्ट भी बहुत लंबी है। उर्दू डिपार्टमेंट, नूरुल इस्लाम, नजीबुर रहमान, जावेद अख्तर, इम्तियाज अहमद,
मोहम्मद शादाब शमीम, सिराजुल हक, सुभान अहमद, छोटन लाहिरी, मोहम्मद असद, तबस्सुम परवीन, मोहम्मद अख्तर, अमीर हमजा, मोहम्मद अजमल, संतोष कुमार, मोहम्मद फिरोज आलम, मोहम्मद तौसीफ खान, मामून अब्दुल अजीज अंसारी, दिनेश कुमार, शाहनवाज अहमद, तुफैल अहमद, आमिर नजीर डार, नाजिया, गुलाम नबी, फरमान अहमद, शगुफ्ता परवीन, मोहम्मद इरफान, रामधन मीना। थैंक यू।